Good morning, my dear respected students, and today we are just begin with a new chapter, and that chapter is to be considered as idea of efficiency, and somewhere we can also call it as idea of algorithmic efficiency. Efficiency means the efficiency of the algorithm, how effectively the algorithm or a solution of a particular problem is supposed to work. That is to be considered as a idea of efficiency or idea of algorithmic efficiency. मेरे बच्चों कृपया करके ध्यान को एकाग्रचित कीजिएगा. And then I am just going to ask some question as well. Okay, my dear respected students, I'm just begin with the introductory part. Introduction is here, and what it makes sense. Kindly consider. It's my humble request. It says an algorithm. मेरे बेटा algorithm के बारे में सबको पता है. You all know that what is the meaning and what is the purpose of algorithm. Even though I am just going to discuss here that if we are supposed to solve any kind of problem or a programmable problem, then we are supposed to write a simple stepwise solution of that problem, and that is to be considered as a algorithm. So what it makes sense, it says an algorithm is a method of accomplishing a specific task, and that can be programmed on computer. The performance of algorithm, beta सबसे important है that we are as a programmer, we are supposed to think of that how effective our program is. प्रोग्रामर के तौर पे हमें ये देखना जरूरी है कि जो प्रोग्राम जो लॉजिक हम बिल्ड कर रहे हैं, हाउ इफेक्टिव दैट लॉजिक इज. क्योंकि आप अभी देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर हैं. that there are n number of factors which are supposed to affect your program. आपके प्रोग्राम को जो है वो प्रभावित करते हैं, इफेक्ट करते हैं. so for the same we having many internal and external factors. मेरे बेटा एक एक स्लाइड करते जाएंगे और एक एक स्लाइड आपसे पूछते भी जाएंगे. कृपया करके ध्यान को एकाग्रचित कीजिएगा. It says performance of algorithm. Okay, the performance of algorithm is based on two different factors. First is to be called as an internal factor. So what it makes sense, internal factor. First point, in context of internal factor, it says that time required to run a particular program. कितना समय चाहिए. And second thing, which is to be called as a space required to run a particular program. But here I want to include one thing, that in today's context, आज के संदर्भ में space is not very important here, because as you all know that many cloud websites or many cloud storage websites, they provide us a ample amount of free storage. For example, if we are creating a new email ID, then they are supposed to Gmail is supposed to give us a 15 GB of free space. There is no charge for that particular space. So in an internal factor, the most important thing which is being related to our program is a time as comparison to the space here. Second, it says that we are talking about external factors. Different external factors are size of input, speed of your computer, because speed of your computer is maybe dependent on the processor you are using, the size of RAM you are using, and in today's context we are again using one storage that is to be called as a SSD, which is a solid state drive. आज अगर आप लैपटॉप लेने जाते हो ना, तो आपको बोलते हैं कि 1 terabyte hard disk is there and 128 or 256 GB SSD is also required to run your system effectively and make the working of your system quick. And last thing, which is the quality of the compiler. अब कृपया करके ध्यान से दीजिएगा जरा इधर. अब जो मैंने करवाया मैं वो पूछूंगा. वेरी गुड. कृपया करके ध्यान दीजिए, वन बाय वन हम आपसे पूछने वाले हैं. संजना, मेरी आवाज आ रही है? संजना जी, संजना बेटा, हाँ वेरी गुड. अनम्यूट तो किया है आपने. संजना, my question is that what do you understand by a algorithm? First of all,
Okay, Sanjana, sorry, but I'm unable to hear you. Kushiketi, can you please explain that what is the purpose of using algorithm? Kushiketi ji. Yes, sir. The algorithm is a way to present the things. Present the things, or we can also call it as this is the way that how we are supposed to write in a simple language that how we are going to solve the particular problem. ऐसे बोला जा सकता है मुझे लगता है ना? Yes, sir. Very good. Thank you very much. Anirudh ji, if my voice is audible to you, my second question is when we talk about algorithmic efficiency, in that case, there are two different factors which is being considered. Can you please tell me the name of those factors, if you don't mind? Anirudh. Sir, internal and external factors. अरे वाह, क्या बात है. अच्छा अनिरुद्ध, थोड़ा सा और elaborate करते हैं. When we talk about internal, can you please elaborate internal if you don't mind? Sir, एक size Okay. and time required to run. Very good. It means when we talk about internal factors, we have been two different factors. One is a time and second is a space. Okay, very good. Thank you very much. Gurpreet ji. Gurpreet, if my voice is audible to you. Gurpreet beta, अगर मेरी आवाज आप तक आ रही है, so my next question is, can you please elaborate the Anirudh ji is talking about internal factors. Can you please explain something about external factors? If my voice is audible to you, Gurpreet ji. Harsimranjeet Singh ji, Dosanjh ji. Yes, sir. Very good. Thank you, Harsimran. बोलिए, please बोलिए. सर एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक हमारे कंप्यूटर की रैम कितनी है या स्पेस. Very good, very good. कंप्यूटर कंपाइलर कितना रन कर सकता है. The quality of your compiler. को. Very good, great. Yes. ठीक है. Thank you very much, Harsimran. Thank you. God bless you. Okay. Now we are just begin with the next concept here. Kindly concentrate, my dear respected students. These are the concepts we have already discussed. Now, what is a computational complexity? What do you understand by a computational complexity? Now we are supposed to divide this word, that is a computational complexity, into two different parts for understanding, for a better clarity. One is a computation and second is a complexity. So what it makes sense, computation, it says the computation involves the problem to be solved and the algorithm to solve. The effects or the efforts which is being done to solve a problem, and with the help of which algorithm we are supposed to sort out a particular problem, that is to be called as a computation. And now there is a complexity. Complexity का मतलब मुझे लगता है कि जो परेशानियां या जो दिक्कतें हमें आती हैं या जो चीजें हमें required हैं, that is to be called as a complexity. It says complexity involves the study of factors to determine how much resources is sufficient necessary for this algorithm to run effectively. Which kind of resources? Resources in context of time, in context of space, in context of speed of your computer, in context of the quality of your compiler. All these things is to be considered as a resources. This is to be considered as a resources. सरल शब्दों में कंप्यूटेशन का अर्थ किसी समस्या का समाधान करना, और complexity का अर्थ the resources which is being required to sort out a particular problem, that is to be called as a complexity. मेरे बच्चों, अब मैं एक एक करके पूछ रहा हूं अपने बच्चों से, कृपया करके ध्यान को एकाग्रचित कीजिए. वेरी गुड. अरे वाह, अनिरुद्ध जी आए हैं, क्या बात है. अनिरुद्ध, अनिरुद्ध बोल, क्या बोलेगा? कंप्यूटेशन का समझाना एक बार दोबारा से. नो प्रॉब्लम. थैंक यू वेरी मच. यहाँ पे अनिरुद्ध क्या लिखा हुआ देख. द कंप्यूटेशन इन्वॉल्व्स द प्रॉब्लम. कंप्यूटेशन जो हम कंप्यूटेशन कर रहे हैं, दैट इन्वॉल्व्स अ प्रॉब्लम. उसमें कोई समस्या है और उसको समाधान कैसे करना है. प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड एंड द एल्गोरिथम टू सॉल्व देम. कोई समस्या
उसको समाधान किस प्रकार करना है और उसका एल्गोरिदम जो उसके समाधान के लिए आवश्यक है, दैट इज टू बी कॉल्ड एज अ कंप्यूटेशन। अनिरुद्ध, मेरी बात समझ आई है पुत्र? यस सर। दोबारा रिपीट करके बताया एक बार, कंप्यूटेशन का मैंने मतलब क्या बताया? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सर कंप्यूटेशन? कंप्यूटेशन मींस उसमें प्रॉब्लम है जो हमें सॉल्व करनी है, और Very good. एल्गोरिथम होता है जिसको जिसके जिसके द्वारा हम उसको हेल्प सॉल्व द्वारा करेंगे। सॉल्व करेंगे। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। ओके, गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट स्टूडेंट, अनिरुद्ध का हो गया, हैंड रेस था आपका अनिरुद्ध जी। ओके जी, गुरप्रीत, इफ माय वॉइस इज ऑडिबल। आज गुरप्रीत मुझे लग रहा है कहीं पे गुम हो रखा है। वेरी गुड, यस वेरी, सर। अरे वाह। गुरप्रीत, कैन यू प्लीज इलैबोरेट द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी इफ यू डोंट माइंड? सर कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है जैसे कि कॉम्प्लेक्सिटी मीन्स, मेरी बात सर, गुरप्रीत जी ध्यान से सुनिएगा, एक सेकंड दीजिएगा मुझे। Complexity means when we are solving a particular problem, the various resources are required to solve that particular problem, that is to be considered as a complexity. अब आप अपने शब्दों में मुझे बताएंगे प्लीज गुरप्रीत जी? सर जो रिसोर्सेज जैसे रिसोर्सेज जो सफिशिएंट हैं फॉर एल्गोरिथम के लिए रन करने के लिए। वेरी गुड। और रिसोर्सेज में क्या क्या चीजें आ सकती हैं? एक आधा कोई एग्जांपल आप बता सकते हो अगर, क्या क्या रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है? स्टोरेज। वेरी गुड, स्टोरेज हो सकता है। और एक और बता दीजिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, टी से स्टार्ट होता है, TIM। अच्छा, मैं रिपीट कर देता हूँ, TIME। गुरप्रीत, क्या बना इसका मतलब? द टाइम। चलिए जी, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम, काइंडली कंसीडर। ओके ओके ओके, मेरा बेटा ध्यान से देखिएगा। डोमिनेंट टर्म, मेरे बच्चों कृपया करके ध्यान दीजिए, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, दिस इज द टॉपिक व्हिच यू आर सपोज्ड टू लर्न वेरी नाइसली। सो here it is, a dominant term. Before dominant term, the first point says, मेरे बच्चों मेरी बात को जरा ध्यान से सुन लेना, it says the big O notation is used to depict an algorithm's growth rate. मेरे बेटा मेरी बात को ध्यान से सुन लेना। Sir, you are talking about two different things. One is a dominant term and second is to be called as a big O notation. मेरे बेटा यहीं पे पूछना है आपसे अभी कि इसका अर्थ क्या है। Big O notation is supposed to display the growth rate of a algorithm which you are using to solve a particular problem. मेरे सरल शब्दों में बिग ओ नोटेशन आपके ग्रोथ रेट को दर्शाएगा। आपके ग्रोथ रेट किसको? आपके एल्गोरिथम के ग्रोथ रेट को। इन विच कॉन्टेक्स्ट? द नंबर ऑफ इनपुट्स यू आर प्रोवाइडिंग एंड द टाइम विच इज बीइंग रिक्वायर्ड to sort out that particular is to be considered or displayed with the help of a big O notation. अब मैं आगे नहीं बोल रहा कुछ भी अभी जिसको big O notation समझ आ गया वो हैंड रेज कर ले। वेरी गुड, those who are able to understand big O notation, वेरी गुड। खुशी खेती ने मुझे हैंड रेज किया है, वेरी गुड। किसी ने अनम्यूट भी किया है? करो करो करो, किसने अनम्यूट किया था जो बोलना चाह रहा था? वेरी गुड, बोलिए गुरप्रीत, बोल। सर रिपीट कर दो प्लीज। बिल्कुल ठीक है। गुरप्रीत जी, द बिग ओ नोटेशन इज सपोज टू डिस्प्ले अ ग्रोथ रेट। ये ग्रोथ रेट दर्शाएगा, किसकी ग्रोथ रेट दर्शाएगा? द ग्रोथ रेट ऑफ योर एल्गोरिदम। सर, व्हाई वी आर यूजिंग अ एल्गोरिदम? वी आर यूजिंग अ एल्गोरिदम टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। किसी समस्या का समाधान करने के लिए हम जिस चीज का प्रयोग करते हैं, दैट इज टू बी कॉल्ड एज एल्गोरिदम, and the growth rate of that algorithm in context of input which is being entered by user and the performance of that algorithm or a program is represented by a big O notation. अब गुरप्रीत अगर समझ आया हो तो अनम्यूट कर ले, अगर नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। यस सर। हाँ बोल बोल मेरा बच्चा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बिग ओ नोटेशन? सर जो बिग नोटेशन होता है वो हमारी जो एल्गोरिथम होती है
उसकी ग्रोथ रेट बताता है कि कितनी है कितनी नहीं। वेरी गुड। और ग्रोथ रेट और जो है सर वो दो चीजों पर डिपेंड करती है, वन इज द इनपुट विच इज बीइंग एंटर्ड बाय यूजर एंड second is the time which is required to solve a particular problem. एक इनपुट और एक टाइम। मेरे बच्चे को मेरी बात समझ आई है शायद? यस सर। Very good. Yes. Second, it says BigO is a function with parameter n, where n is usually the size of input to the algorithm. ये मैं, आप बेफिक्र हो जाइए, अभी हम आपको एग्जांपल देंगे, डेमोन्स्ट्रेट करवाएंगे, बेफिक्र रहिए आप। Second point says while describing the growth rate of algorithm. बेटा जहां पे वर्ड आ गया the growth rate of an algorithm, it means we are talking about the context of BigO notation. Okay. Next it says we simply consider the term which is going to affect the most on the algorithm performance. This term is known as the dominant term. कहता सर माफ करना, मुझे ये बात समझ नहीं आई, मुझे ये बात समझ नहीं आई, मुझे ये समझ आ गया what is the meaning of BigO notation, but it's difficult to understand what do you understand by dominant term. Okay, no problem. Kindly consider one example here. मैं आपसे पूछूंगा, कृपया करके इधर ध्यान को एकाग्रचित कीजिएगा, इस स्क्रीन के ऊपर देखिएगा। I having one loop that is a for loop and it moves from the 0 to n, and after that we having the statement which is used to says that m is equal to m plus 1. मेरा बेटा मेरी बात को जरा ध्यान से सुन लेना, मेरे बच्चों मेरी बात को ध्यान से सुनना। When we talk about this loop, it says it executed n number of times. ये n number of times जो है वो execute करेगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसकी big O notation लिखने वाला हूँ, and in context of big O notation we considering both the things, that is big O notation as well as a dominant term. मेरे बेटा ध्यान से देखिएगा। Second, it says all the steps in this loop take constant time, say c. मेरे बच्चों कृपया करके मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। अब ये जो हमारे पास ये जो चीज है, ये जो हम लूप जिसकी बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस लूप, इट रिक्वायर्स how many times? It requires a n number of time, whereas when we talk about this particular, that is m is equal to m plus 2, it requires how many time? It requires a constant time, and we consider that constant time we represent that with the help of c. मेरे बच्चों को जिनको मेरी बात यहाँ तक समझ आ गई है वो कृपया करके हैंड रेस करने की कृपालता कर दें। वेरी गुड सर। जी बोलिए, प्लीज बोलिए सर। सर ये सी किसको रिप्रेजेंट करेगा? मेरा पुत्र जब भी कोई स्टेटमेंट आएगी, अनिरुद्ध जब भी कोई स्टेटमेंट आएगी, जैसे ये स्टेटमेंट आ रही है मेरा बेटा, इसके लिए हम क्या करेंगे, वी आर जस्ट सिंपली यूज दिस स्टेटमेंट दैट हाउ मच टाइम इट रिक्वायर्ड फॉर एग्जांपल कांस्टेंट टाइम, एंड फॉर रिप्रेजेंटिंग दैट कांस्टेंट टाइम वी कैन सिंपली यूज अ कैरेक्टर दैट इज टू बी कॉल्ड एज अ सी। जो लूप है क्योंकि वो n नंबर ऑफ टाइम चल रहा है इसलिए n ले लिया, और जो स्टेटमेंट जो कांस्टेंट टाइम चल रही है उसको हमने सी के साथ रिप्रेजेंट किया। जिसको समझ आया वो हैंड रेस करना, जिसको समझ नहीं आया वो हैंड रेस मत करिएगा प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। वेरी गुड। अर्शप्रीत ने हैंड रेस किया है, खुशी ने किया है, अनिरुद्ध का नहीं हुआ, गुरनूर जी वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, अनिरुद्ध का भी हो गया। और गुरमन हमारा गुरमन तो शायद मेरे ख्याल से सुन रहा है मेरी आवाज। सर एक एग्जांपल समझा दो। मैं सर अभी 4 एग्जांपल दोबारा करवाऊंगा, आप बेफिक्र रहिए। गुरप्रीत थोड़ा बहुत समझ आया इस कॉन्टेक्स्ट में? वेरी गुड। अब जरा कृपया करके ध्यान दीजिएगा, मैं 3 एग्जांपल और करवाऊंगा, आपको 110% समझ आएगा। मेरे बच्चों मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। What is the total time which is being taken by that particular code? इस टाइम ये जो कोड गिवन है ये कितना टाइम कंसीडर करेगा? दैट पर्टिकुलर इज बीइंग रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ अ बिग O नोटेशन। सर अब क्या हुआ, प्लीज इधर देख रहा ध्यान से। इट सेज दैट दिस पर्टिकुलर इज सपोज्ड टू बी रन n नंबर ऑफ टाइम, n is supposed to be mentioned here। मेरे बच्चों मेरी बात ध्यान से सुन लेना। And because this statement requires a constant time, so what it is being represented? It is being represented with the help of c, and it says that this is a cn. This is a cn. But what we are talking about, that out of these two, that is a c and n, because c representing only one statement, whereas
n representing a loop which is supposed to be run for n number of time. So out of these two, c and n, the dominant term जो अपना प्रभाव ज्यादा डाल रही है, जो greater है, that is n in place of or in comparison with the c. That's why this is a big O notation, O representing that this is a big O notation, and within bracket why we are writing n? We are writing n because out of these two, Cn, the n is to be considered as a dominant term, जिसका प्रभाव जो है, impact जो है, the impact is more as comparison to C. अब मेरे बच्चों को जिनको मेरी बात यहां तक समझ आई है वो हैंड रेस कर दे कृपया करके फटाफट. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ग्रेट, वेरी गुड, वेरी गुड. अनिरुद्ध ने कर दिया, अर्श ने, अर्शप्रीत ने तो पहले से किया हुआ, खुशी खेती ने कर दिया. गुरनूर अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं. गुरप्रीत जी वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच. ओके हरसिमरन, अगर हाँ हरसिमरन जी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, नो इश्यूज विद दैट. अच्छा अब मैं थोड़ा सा बोलना कम करूंगा and I need that you all are supposed to discuss things with me. अब मैं क्या किया मैंने, now I am just, देखो ये क्या आ रहा है, time taken by one step, time number of steps in the loop and then this is total time consider. अब कृपया करके ध्यान देना, अब मैंने एक और आपको एग्जांपल दिखाया. प्लीज अब मैं यहाँ से आपसे वन बाय वन पूछूंगा, प्लीज देखिएगा. प्लीज दिखाने से पहले मैं आपसे आंसर जानना चाहता हूँ इसका. ओके one by one I am just going to discuss with each of you. Okay, खुशी ये जो पहले स्टेटमेंट लिखी है फॉर i in range n, मेरा पुत्र ये जो लिखा है फॉर i in range n, ये लूप कितनी बार चलेगा? n times. Very good, it moves till n. Okay, very good. After Kushi, Arshpreet, if my voice is audible to you and if you are listening, that next loop is for j in range n. This is, I think so, outer loop. This I is outer loop and this is to be considered as a inner loop. ये inner loop कितनी बार चलेगा मेरा बच्चा अर्शप्रीत जी? Number of times. Sorry, N number of times. अरे वाह क्या बात है. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अर्शप्रीत, वेरी गुड. अच्छा अब उसके बाद नेक्स्ट जो है मेरा बच्चा, मैं गुरनूर तो नहीं बोलता, गुरप्रीत जो आगे लिखा हुआ है m is equal to m+2, ये कितनी बार चलेगा यार गुरप्रीत? ये n नंबर ऑफ टाइम चलेगा या कांस्टेंट टाइम चलेगा? सर कांस्टेंट, कांस्टेंट टाइम चलेगा. अच्छा अगर ये कांस्टेंट टाइम चलेगा तो मुझे इसको कंपेयर करके बताइए इसका आउटपुट क्या आना चाहिए. पहला जो आउटर लूप है वो n टाइम चलेगा, दूसरा लूप फिर n टाइम चलेगा और m is equal to m+2 है which moves till constant time. Constant time we represented with the help of c. कोई है जो मुझे बता सकता है? खुशी ने पता नहीं पहले से हैंड रेज किया हुआ है या सर c into n. नहीं, अब तू ये देख, अब ये c, अब तूने मुझे बोल दिया c into n या कुछ और भी मल्टीप्लाई हो रहा है उसमें सर And- c into n square. अरे वाह, ये कौन है, ये कौन है जिसने बोला c into n square? हरसिमरन. हरसिमरन. अच्छा हरसिमरन अगर तूने यहाँ पे लिख दिया फॉर एग्जांपल, तूने यहाँ पे, अब मैं ये माउस से लिख रहा हूँ, अगर तूने यहाँ लिखा c और उसके बाद तूने बोला दिस इज n एंड रेज टू पावर 2. अच्छा इसमें से अब इस वाली टर्म में से कौन सी टर्म है जो डोमिनेंट टर्म है? डोमिनेंट, क्योंकि हम बिग नोटेशन में डोमिनेंट टर्म लिखते हैं. सर n square. अरे वाह क्या बात है. इसका मतलब अगर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ बिग ओ नोटेशन, सो वी कैन मेंशन इट लाइक दिस, दैट दिस द आउटपुट और आंसर ऑफ दिस इज टू बी कंसीडर एज अ n स्क्वायर. सर अब आप जरा देखिएगा, हमें गाइड कर दीजिएगा. अब इधर देखिएगा प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, काइंडली कंसंट्रेट. इट सेज यस दिस इज अ आउटर लूप एंड इट एग्जीक्यूटेड n नंबर ऑफ टाइम. बिल्कुल ठीक है. This is again this is a inner loop and it is being executed again n number of times, and this is a statement inside a inner loop, and this is supposed to be considered that it will take a constant time, a particular constant time. Okay, so what we can do here, we can simply write it like this: total time n into n multiply by c is equal to c n square raised to power 2, or we can call it as
And after that, because we are supposed to write in context of big O notation, we can write only a dominant term. That's why we mentioning O, that is a big O notation, and within a bracket we mention n square. Then it says that this is a dominant term, and this is the description that how we can get these information. अब जिनको मेरी बात समझ आई हो, गुरप्रीत को या जिसको भी मेरी बात समझ आई हो, वो हैंड रेस कर दीजिएगा कृपया करके. वेरी गुड. अरे वाह. अनिरुद्ध, अर्शप्रीत, वेरी गुड. खुशी, वेरी गुड. गुरप्रीत, वेरी गुड. वेरी गुड. सिमरनजीत, वेरी गुड. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. गॉड ब्लेस यू. चलिए जी, अब नेक्स्ट करते हैं. अब नेक्स्ट का आंसर भी तुम्ही ने देना है, मैंने नहीं देना. अगर आपको समझ आ गया तो आप इसका आंसर बताएंगे. डोमिनेंट टर्म फॉर एग्जाम्पल, अब जरा कृपया करके ध्यान दीजिए. अब मुझे बताइए what is the output or how we can consider this thing. सबसे पहले खुशी के पास. खुशी, ये x is equal to x plus 1. Yes, sir. ये क्या चीज है? ये इसको कांस्टेंट कर रहे हैं, कांस्टेंट टाइम देना है, या इसको हमने n कंसीडर करना है? The constant है. अच्छा, अब तेरे को मेरे को लगता है बहुत सारे 3 बार स्टेटमेंट्स आ रही है ना. x is equal to x plus 1, m is equal to m plus 2, y is equal to y plus 2. तो क्या अब हम ऐसे करें, हम इसको कंसीडर कर लेते हैं कि कांस्टेंट टाइम को c0, c1, c2 ऐसे कंसीडर कर लेते हैं फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि इसको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए. सो वी कैन कंसीडर दिस इज अ c0. ओके, आफ्टर खुशी वी आर टॉकिंग अबाउट अनिरुद्ध जी. हाउ मेनी टाइम वी टेकन बाय फॉर i इन रेंज n? Anirudh. Sir, n. Very good, Anirudh. Thank you very much. Arshpreet, m is equal to m plus 2. How much time it takes? C1 sir. C1. अरे वाह अर्शप्रीत, तू तो अच्छी है, तू आती नहीं है वैसे, पर तू है अच्छी. Very good, no problem. Okay, the next thing it says for j in range n, Gurpreet, how much time it will take? So n times. N times. Very good, great. After that, after Gurpreet, Harsimranjeet Dosanjh Sahab, for k in range n, मेरे बेटा ये कितना टाइम लेगा? Sir, n time. Very good. And last statement says y is equal to y plus 2. ये कितना लेगा टाइम? Sir, C2. C2. Constant Very time. good. अब मुझे कैलकुलेट करके बताइए the what will be the output of that particular. What will be the output of that particular. अब आप मुझे पहले मुझे आउटपुट कंसीडर करके दिखाइए, उसके बाद मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा कि इसकी आउटपुट क्या होनी चाहिए. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. जो कर ले वो मुझे बता दे. इसका मतलब C0, फिर n आ गया, फिर C1 आ गया, फिर अगली जो अगली स्टेटमेंट है उसके लिए हमने n लिया, फिर n लिया, फिर C012 C2 लिया. हाँ बोलो, खुशी बोल रही है मेरे ख्याल से. Sir, n cube into C0, C0, C1, C2. नहीं नहीं, इसका अब ये तो तूने बता दिया सारा इसको कंसीडर करके. आई एम टॉकिंग अबाउट हाउ वी कैन रिप्रेजेंट दिस इन अ बिग नोटेशन, जिसमें हम क्या करते हैं, डोमिनेंट टर्म सिर्फ दिखाते हैं. वी आर सपोज टू डिस्प्ले अ डोमिनेंट टर्म ओनली. वेरी गुड, वेरी गुड. अर्शप्रीत बोलने वाली है. अर्शप्रीत ने हैंड रेज किया है. अर्शप्रीत बोल. n cube big rotation n cube होगी. अरे n वाह, cube. क्या बात है. चल मैं दिखाता हूँ. खुशी ध्यान से देखना मेरा पुत्र. This takes a C0 constant time. It takes a n time. It takes again C1, that is a constant time. Again this is a n time. Again this is considered as the inner loop as n time, and this is to be considered C2. Now kindly consider. It says C0 plus C1 multiplied by n. Okay. After that plus C2 and n raised to power 2. मेरे बच्चों, अब इन सारी इस पूरी की पूरी स्टेटमेंट में से ये अगर मैं कंसीडर करूं तो ये डोमिनेंट टर्म नहीं है. दिस इज नॉट टू बी कंसीडर एज अ डोमिनेंट टर्म. अच्छा, अब मैं यहाँ कंसीडर करूं C1 मल्टीप्लाई बाय n. यार इसको कंपैरिजन अगर इसके साथ करूं, यहाँ लिखा है C2 n रेज टू पावर 2. अगर इन दोनों का कंपैरिजन करूं तो मुझे लग रहा है कि ये वाली टर्म जो है ये ग्रेटर है एज कंपैरिजन टू C1 मल्टीप्लाइड बाय n. बट अगर इस स्टेटमेंट से भी मैं डोमिनेंट टर्म ढूंढूं जो बिग टर्म है, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट वी कंसीडर दैट n raised to power 2. That's why we can mention it like this, that this is to be considered as n raised to power
2, this is to be considered as a dominant term. मेरे बच्चों को जिनको मेरी बात समझ आई हो वो हैंड रेज कर दें, जिनको नहीं आई वो अनम्यूट करके मुझसे क्वेश्चन पूछ लें. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. हर्षप्रीत ने हैंड रेज कर दिया है, खुशी खेती जी ने हैंड रेज किया है, अनिरुद्ध अगर कोई, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. अनिरुद्ध ने भी कर दिया, हरसिमरत ने भी कर दिया, गुरप्रीत ने नहीं किया. गुरप्रीत अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले यार. मेरी आवाज अगर गुरप्रीत तक आ रही है, अगर ओके नो प्रॉब्लम. चलिए जी, अब ये देखिए एक और चीज देखिए, आप एक और कंसीडर करिए, एक और स्टेटमेंट आ गई आपके पास. अब देखिएगा जरा, here it is, the statement says if length of list 1 is not equal to length of list 2, return false. अब मैंने क्या किया, ये जो if consider किया है, we can give a constant time to that, that is a C0. okay, अब यहाँ पे return false आया, again we can give a constant time to that, and we mentioned that this is to be considered as a C1. Whereas when we talk about a loop here, it says that it will take n time because there is a loop and it moves from 0 to n, and after that again the if statement takes a constant time of C2, and then again it takes a constant time, return false, that C3. अच्छा, अब इसके मुझे बताओ क्या बनेगा क्या, और इसकी डोमिनेंट टर्म क्या आएगी, या बिग ओ नोटेशन में कैसे लिखेंगे इसको. वेरी गुड, कौन बताएगा, हैंड रेज कर दीजिए फटाफट जो मुझे बताएगा. वेरी गुड, वेरी गुड. अरे वाह अनिरुद्ध, वेरी गुड. अनिरुद्ध चल बोल बोल. सर ये सेकंड वाला एन ये आएगा, ओ एन, ओ ब्रैकेट में एन आएगा. ओ ब्रैकेट में एन आएगा. अच्छा ठीक है. खुशी क्या आएगा आंसर, अगर खुशी जी इलेबोरेट करें. खुशी जी क्या आएगा आंसर इसका. सर पहले C1 into C0 ओके, और फिर प्लस में प्लस करेंगे n into C2 C3. वेरी गुड. और इसमें से आप डोमिनेंट टर्म जब ढूंढेंगे तो क्या आएगी इसमें डोमिनेंट टर्म. सर डोमिनेंट अब कांस्टेंट है ना, बाकी सब जगह कांस्टेंट है, सिर्फ एक जगह लूप आ रहा है एंड इट विल टेक एन टाइम. सो व्हाट विल बी द आउटपुट विल बी एन, आई थिंक सो. कृपया करके ध्यान दीजिएगा. इट सेज C0 plus C1 plus C2 plus C3 multiplied by n, and when we consider it as, we consider that the dominant term out of these is to be considered as a n here. Very good. अब मेरे बच्चों मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना. What we are doing here, we are just going to mention the time which is being taken by a particular program. अब मेरे बच्चे अभी तक कह रहे थे सर क्या थ्योरी करवाते जा रहे हो, अब कुछ प्रैक्टिकल भी करवा लो ना. तो मैंने कहा चलो मैं प्रैक्टिकल भी करवा देता हूँ. अब इसका पर्पस क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग दिस. आज के लिए 5 मिनट है, सिर्फ एक प्रोग्राम करेंगे एंड वी आर जस्ट गोइंग टू check that what is the importance of time in context of program you have created. Okay, सबसे पहले मैंने क्या लिखा, मैं लिखा from time import asterisk. मैंने यहाँ पे asterisk लिख दिया. उसका अर्थ क्या है कि मैं एक टाइम नाम का जो मॉड्यूल है मैं वो इंपोर्ट कर रहा हूं, और उससे मैं चेक करूंगा कि व्हाट विल बी द टाइम व्हिच इज बीइंग टेकन बाय अ पर्टिकुलर प्रोग्राम. और मैं प्रोग्राम सिंपल ले रहा हूं बिल्कुल, डेफ सम. इसका मतलब आप लोगों को समझ आ गया that we are just declaring a function to find the sum of a particular number. अच्छा अब क्या करूं, सबसे पहले स्टार्ट, शुरू कहां से हो रहा है उसका टाइम देख लेते हैं. START स्टार्ट, एक वेरिएबल ले लिया स्टार्ट, और मैंने यहाँ पे मेंशन किया टाइम फंक्शन. इसका मतलब है कि जब ये प्रोग्राम स्टार्ट होगा, द बिगिनिंग टाइम इज बीइंग स्टोर्ड इन अ वेरिएबल दैट इज अ स्टार्ट. ओके, after that what we can do, sum1 is equal to 0. Very good, because we have to initialize that what will be the sum of that, and we can mention for I in a range here, and we can mention it begins from a 1. We take it in spite of begin the loop from 0, we can take it as 1, and when we take it as 1 we can mention it as n plus 1. Very good, great. After that sum1 is equal to sum1 plus 1. अब मैंने क्या किया, ये सिंपल, बिल्कुल सिंपल हो रहा है, that how we can get the sum of a particular number, and now we can just terminate that and we can find the end time
what we can do, we just mention a variable that is the end, and we can mention the time function here for getting the time, ending time. Okay, and how we can find that actual time? We mention it as t is equal to end minus start. इसका सिंपल मतलब हुआ कि हमने एक टी नाम का वेरिएबल लिया और जो एंड टाइम है क्योंकि वो ग्रेटर है, ज्यादा होगा स्टार्ट टाइम से, इन दैट केस वी कैन माइनस एंड टाइम विद द स्टार्ट टाइम, एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्प्ले हियर, वी कैन सिंपली मेंशन प्रिंट, that is first of all the sum of these numbers and the time which is being taken. Time taken is, and what we can do, the time is being represented by t here, and we can mention it as a second, seconds, and we can just hit the enter key. One thing is pending that we are supposed to call that particular function, and we are just giving a huge number, big number here, and for that we can check the time which is being taken by this particular program. अच्छा मेरे बच्चों मेरी बात जरा ध्यान से सुनना. अब मैंने क्या किया, आई एम जस्ट गोइंग टू, पहले मैं एक बार रन कर दूं, आई एम जस्ट गोइंग टू प्रेस F5 एंड हिट द एंटर की है. मैं इसको एंटर कर रहा हूं, आइडिया ऑफ एफिशिएंसी 3 मैंने एंटर किया. आई एम जस्ट गोइंग टू हिट दैट एंटर की. ओके, नाउ वी कैन चेक वेदर इट वर्क्स और नॉट. नो प्रॉब्लम विद दैट. ओके मेरे प्यारे बच्चों, कृपया करके ध्यान को एकाग्रचित करने की कृपालता करें. It says that here it is one error we are making. Why? That's why it gives a same value here, because in spite of mentioning I here, we have mentioned 1 here. So again we can press that F5 and hit the enter key. Now kindly consider that this is to be considered as the sum of this number, and how much time which is being taken by a particular program to display or to execute that, this is being displayed here. मेरे बच्चों को जिनको मेरी बात समझ आई हो वो कृपया करके हैंड रेज करने की कृपालता करें. वेरी गुड, वेरी गुड. हैंड रेज करने की कृपालता करें जिन बच्चों को मेरी बात समझ आ चुकी है. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. अनिरुद्ध ने कर दिया, खुशी ने कर दिया. वेरी गुड. और अगर कोई क्वेश्चन है आपके मन में तो यू कैन आस्क दैट क्वेश्चन एज वेल. नो इश्यूज विद दैट. सर आउटपुट वो क्यों आया 5 से? सॉरी, मैं आपकी आवाज नहीं आ रही, क्या बोल रहे हैं? सर मैं पूछ रही हूँ वो जो आउटपुट आया, हाँ जी सर वो कैसे आया? मेरे बेटा, ये हमने जो वैल्यू मेंशन की है ना हर्षप्रीत कौर जी, ये वैल्यू पास होगी n के पास. दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी पास टू n, and this time function stores the beginning time in a variable start. After that we initialize sum1 to store the sum of that particular number which is being passed here from n to n, and the loop is beginning from 1 to n plus 1. Then the value is being incremented each time.